Yes, good evening all. As I remember, we were solving question based on work energy theorem, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let us solve few more questions based on that, and then we'll go to the next topic of this chapter. So before we go to the next topic, let us solve 2 or 3 questions based on this work energy theorem. The first question is this way कि मान लीजिए कि आपसे मैं ये कहूँ कि let's see आपको कितना याद है. मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ ये ऐसे एक spring is there and there's a block. There is a block and the mass of this block is let us say 4 kilogram, and this block has been pushed with a velocity of 20 meter per second, and there is a friction on the surface. The surface is rough, having a coefficient of friction to be 0.2, and the value of a spring constant is 20 newton per meter, right? Undoubtedly this block is moving towards the spring, and a spring is initially in its natural length. That means it is neither compressed nor elongated, so it is in its natural length. Now the block will hit the spring and will compress the spring, right? And it will keep on compressing the spring till its velocity becomes 0. Am I correct? Yes, sir. ठीक है. तो क्वेश्चन आपका है सर, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि what would be the compression in the spring before the block stops? Question is find compression in a spring. Find compression in a spring just find compression in a spring when block stops. Okay, just tell me one thing. Can we apply the conservation of mechanical energy in this case? No, sir. And what's the reason for that? Why we cannot friction is apply? acting. Because friction Sir, is acting, repeat and कर friction दोगे is a एक बार? non-conservative force. जी सर आप मैं सुन नहीं पाया था, आप क्या कह रहे थे, रिपीट कर दोगे क्वेश्चन? मैंने बस ये पूछा कि हम यहाँ पर वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम. हम सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू दिस और नॉट? सर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम? नहीं सर, नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते बिकॉज फ्रिक्शन इज देयर एंड फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. So because there is a friction, so we cannot apply the conservation of mechanical energy, right? तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. करेक्ट है भाई? यस सर. So let us apply work energy theorem. और work energy theorem का statement क्या है? Work done by all the forces is always equal to change in kinetic energy of the body. And work done by all the forces means what are the forces that would be acting on the block? तो पहला तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा बिकॉज द सरफेस इज रफ, तो देयर विल बी फ्रिक्शन एक्टिंग अगेन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक. एंड व्हेन द ब्लॉक विल स्टार्ट कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, तो एक और फोर्स इस पे ऐड हो जाएगा, एंड दैट वुड बी द फोर्स ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स व्हिच विल आल्सो बी against or opposite to the direction of motion of the block, because block will be trying to compress the spring, और spring को अगर आप compress करेंगे तो spring क्या चाहेगी? Spring will tend to regain its natural length, and in order to do that it will oppose the motion of the block. So there are two forces which is opposite to the direction of motion of the block. ठीक है? और ये जो दोनों फोर्सेस का वर्क डन है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन का वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ. अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर देना भूल गया आप लोगों को. लेट दिस लेंथ, लेट दिस बी इक्वल टू 2 मीटर. ये वाला फ्रॉम द फ्री एंड द ब्लॉक इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, राइट? ब्लॉक कितनी दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर ऑलरेडी है. क्लियर है? अच्छा, ये जब स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा तो पहले तो ये 2 मीटर ट्रैवल करेगा, प्लस फर्दर कितना और ट्रैवल करेगा ये? तो 2 प्लस ऑफ x. डोंट यू थिंक सो? वेयर x विल बी द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग.
देखो फ्री एंड तक पहुंचने के लिए 2 मीटर तो ये कवर करेगा, फिर जब वंस इट विल हिट द स्प्रिंग टू कंप्रेस द स्प्रिंग फर्दर, इसको और उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है। सही बोल रहा हूँ? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. सबको समझ में आ गई बात? भाई 2 मीटर तो कवर करेगा ही, साथ साथ क्या डिस्टेंस कवर करेगा? जितनी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है वो डिस्टेंस भी तो ये कवर करेगा। तो स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो रही है बाय लेंथ ऑफ एक्स, तो ब्लॉक टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 प्लस ऑफ एक्स। तो माइनस ऑफ 2 प्लस एक्स। एंड व्हाई इज देयर अ नेगेटिव साइन इन द कैलकुलेशन ऑफ वर्क? तो नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पर बिकॉज दिस फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोशन। अच्छा, दूसरा कौन सा वर्क डन है? दूसरा वर्क डन है स्प्रिंग का। स्प्रिंग का वर्क डन क्या लिखेंगे आप? हाफ के एक्स स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन विद द वर्क डन बाय द स्प्रिंग? अगेन वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग के साथ हमने नेगेटिव साइन क्यों यहाँ पर रखा है? बिकॉज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ब्लॉक इज गोइंग दिस वे एंड द स्प्रिंग फोर्स विल बी एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक, राइट? अरे कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, And sir. what would be the final kinetic energy? Zero, because finally the block has to stop. Initial kinetic energy half mv square. So everywhere there is negative sign which we can finally cancel out. और फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू एन, और एन यहाँ पर फिर से mg। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2, m is 4 and g is 10, तो 40 into 2 plus of x plus of half kx square, k की वैल्यू कितनी है? 20 multiplied by x square is equal to half into m. m is 4 and v square is equal to 20 ka square, and we can solve this from here. And what we'll get? So 0.2 multiplied by 40, this will become equal to 8. ये वाला दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। देखो 8 2s 16, 8 2s are 16, and 8 into x is 8x plus of 10x squared is equal to 2 2s the 4, and this will be 400. So 400 into 2 will be equal to 800. Am I clear to all? Please respond. This will be equal to 10x square, और यहाँ से 8x will be as it is। ठीक है, इसको इधर ले आओ। तो 800 माइनस ऑफ 16, अगर 800 मतलब 800 के साथ माइनस साइन आएगा, तो माइनस 800 एंड प्लस ऑफ 16, तो कितना आ जाएगा ये? 784। दिस इक्वल टू 0। इट विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसका सिंप्लीफिकेशन विल टेक टाइम व्हिच यू विल सॉल्व। ठीक है, in your free time you will solve this to find the final result, but this is how we'll solve the question. यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड अगेन। द रीजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी हम इसलिए नहीं लगा सकते, मैकेनिकल एनर्जी हम इसलिए कंजर्व नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नोट करिए, नोट करके बताइए, एक दो और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसमें। Done, sir. सर इसका आंसर बहुत अजीब नहीं आएगा? कुछ भी आ सकता है क्योंकि मैंने भी कोई इस पे वो किया नहीं है। डेटा अजीब सा है तो आंसर अजीब सा हो सकता है, क्योंकि मैंने इस पे कोई पहले कोई डेटा को कैलकुलेट नहीं किया है। बट यस, मेथड यही रहेगा सर। मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल रिमेन द सेम। सर ठीक है ऋषिक साहब? यस सर। देखो डेटा में इशू हो सकता है बिकॉज मैंने जस्ट आपके सामने ये क्वेश्चन का डेटा लिया है, मुझे भी नहीं पता कि डेटा
सही है या नहीं है, but yes, I am sure about one thing, that is the method to solve the question, and I'm sure about the method. The method तो भाई यही है, and you will have to apply the work energy theorem in this case, because you cannot conserve mechanical energy as there is a frictional force, and frictional force is a non-conservable force. Okay, moving on to the next question. अब देखो, ये क्वेश्चन है कि ये एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, and this another block, there's this another block, ठीक है, and this block is of mass, let us say 4 kilogram, and this block is of mass, let's say 3 kilogram, और दोनों एक ही सरफेस पे, दैट मीन्स दोनों के लिए जो फ्रिक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ द ब्लॉक इज सेम, दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम, द सरफेस इज रफ एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ द ब्लॉक्स इज सेम, ठीक है। आपसे बोला ये जा रहा है सर कि both the blocks has been pushed in opposite direction, ठीक है, with a very huge force, दोनों ब्लॉक को हमने क्या करा है, we have just pushed them in the opposite direction, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि दोनों ब्लॉक को हमने सेम फोर्स से पुश कर दिया in the opposite direction, and this force with which we are pushing these two blocks in the opposite direction is a very huge force, clear है। ह्यूज फोर्स कहने का मतलब ये होता है कि ये फोर्स इंपल्सिव है, इंपल्सिव भले आपको अभी नहीं पता होगा या शायद मैंने बताया नहीं है, बट अभी ये समझिएगा कि although friction is there, but still we can conserve the linear momentum, because force is, if the force is very huge which acts on a body for a very short duration of time, so that force is called as impulsive force, or that is called as impulse. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि if a very huge force acts on a body for very short duration of time, तो उस फोर्स को हम impulse कहते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। Yes, sir. जैसे अ बैट हिटिंग अ बॉल, जब आप क्रिकेट में शॉट लगाते हो तो बैट एंड बॉल रिमेन इन कांटेक्ट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द बॉल ड्यू टू द बैट, दैट फोर्स इज वेरी ह्यूज, राइट, व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉल फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उस फोर्स के इफेक्ट को हम इंपल्सिव कह सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से जब भी बहुत ह्यूज फोर्स एक्ट करेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उस फोर्स को हम सिंपली क्या कहेंगे, इंपल्सिव, एंड व्हेनेवर द फोर्स विल बी इंपल्सिव, आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन है बट स्टिल मोमेंटम का कंजर्वेशन इज वैलिड। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या बोला है। मैंने आपको ये बोला है कि भाई बोथ द ब्लॉक्स आर बीइंग पुश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम ह्यूज फोर्स, ठीक है, और वी ऑब्जर्व्ड दैट this 4 kg block moved a distance of 36 meter before coming to rest. So you have to find out the distance traveled by 3 kg block before it stops. तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लो, write the statement of the question कि both the blocks are pushed in opposite direction. Both the blocks are pushed P-U-S-H-E-D. Both the blocks are pushed in opposite direction. Pushed in opposite direction. Pushed in the opposite direction with the same huge force. With the same huge force. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Pushed in the opposite direction with the same huge force. ठीक है? If the distance traveled by 4 kg block is 36 meter, if the distance traveled by 4 kg block is 36 meter, find the distance traveled. लिख लिया ना वो 30 कितना बोला है, 34 मीटर, 36. meter. Find the distance traveled. Find the distance traveled by 3 kg block before it stops. Find the distance traveled by
3 kg block before it stops. सर ऑपोजिट डायरेक्शंस में उन्हें हम पुश कर रहे हैं, Yes, we are pushing them in the opposite direction, सेम but फोर्स. with the same value of the force. Yes, हम जो force exert कर रहे हैं, that force is same. बस डायरेक्शन ऑपोजिट है कि मतलब सर जैसे तो हम अगर वो सर मतलब कोलाइड करेंगे वैसे कर रहे हैं या फिर लेफ्ट में एक और एक राइट में? नहीं मेरे लाल, मतलब ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे कर रहे हैं so that they go away from each other. They do हाँ not collide. They do not collide because if they will collide तो मसला ही खत्म हो जाएगा, फिर हम डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे? तो they are not colliding. They are being pushed apart. अगर दिक्कत हो तो ऐसे लिख सकते हो pushed apart. मतलब they are being pushed apart. मतलब दोनों they are not moving towards each other, rather they are going away from each other. अब देखो मैं बताता हूँ हाउ टू सॉल्व दिस वन. मैं समझाता हूँ, सुने. पहली बात तो ये है कि बेटा these two blocks has been pushed in the opposite direction and this one is going this has gone by a distance of 36 meter before it stops and you have to find out this distance. What would be this distance? तो एक बात तो हम ये कह सकते हैं, मैंने अभी बोला है कि ये these has been pushed with a very huge force and initially these blocks were at rest. तभी तो push किया आपने from rest. तो एक बात तो पहले ही बात ऑब्वियस है कि मोमेंटम का कंजर्वेशन सुना है आप लोगों ने? हैव यू हर्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. भाई यहाँ पर दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व्ड बिकॉज दोनों हैज बीन पुश्ड बाय द सेम फोर्स एंड वो फोर्सेस एक्टिंग, अगर मैं इन दोनों के बीच का जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो अगर मैं इंटरनल फोर्स मान लूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बात तो मोमेंटम कंजर्व्ड है. That means m1 v1 will be equal to m2 v2. Let me consider this velocity as v1 and let me consider this velocity as v2. मतलब 4 times of v1 is equal to 3 times of v2, or we can write v1 upon v2 is equal to 3 by 4. This is one of the information that I have got because I neither know the value of v1 nor I know the value of v2. So I have just got the relation between v1 and v2 by conserving the linear momentum of the two blocks. सर Now, yes. सर हम किन केसेस में अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? वो मैं आपको बता दूंगा सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, बट अभी बता देता हूँ कि यू कैन ओनली कंजर्व द लीनियर मोमेंटम wherever you have internal forces and there is no external forces acting on the system. There is no non-conservative forces acting on the system. तो यहाँ पे इसका तो फ्रिक्शन है. यही मैंने थोड़ी देर पहले अभी 4 बार बोला था कि जब फोर्स इंपल्सिव लग रहा हो, अब इसको समझने के लिए ना आपको जब सेंटर ऑफ मास में मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिखाऊंगा तब वहां पर ज्यादा क्लियरली ये बात समझ में आएगी. बट अभी मैंने अभी 4 बार एक बात कही है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो सकता है वहां पर भी जहां पर आपका फोर्स बहुत ह्यूज फोर्स हो, जिसको हम इंपल्सिव कहते हैं. अभी बोला था ना मैंने, ह्यूज फोर्स इसीलिए लिखवाया है. ह्यूज फोर्स का मतलब है कि इतना ह्यूज है ये कि आप इस केस में मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हो. क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, दैट विल बी टॉट टू यू इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज सेंटर ऑफ मास. ठीक है सर? यस सर. अभी फिलहाल मान लीजिए इसको. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरी बात, हम यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं ये बताओ. देखो आपने इसको पुश किया तो यू प्रोवाइडेड इट अ काइनेटिक एनर्जी, और ये जब आगे बढ़ेगा तो बिकॉज सरफेस इज रफ, तो ये जो सरफेस रफ है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एंड विच विल रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मोशन को रिटार्ड करके इट विल ब्रिंग द ब्लॉक टू द स्टेट ऑफ रेस्ट. और इस प्रोसेस में इसको रेस्ट में लाने के लिए इस प्रोसेस में जो वर्क होगा, डोंट यू थिंक दैट वर्क विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स. मतलब अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो मैं कह सकता हूं हाफ इनटू मास ऑफ दिस ब्लॉक 4 मल्टीप्लाइड बाय v1 का स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन का वर्क कैसे हम लिख सकते हैं, म्यू मल्टीप्लाइड बाय mg दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक इज 36. डिड यू अंडरस्टैंड? लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ हाफ इंटू 3 इंटू v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, म्यू, क्योंकि मैंने कहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ द ब्लॉक्स इज सेम, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय x. दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट.
क्या मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं? सर डिवाइड 2/3, अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड कर दूं तो हाफ एंड हाफ विल कैंसिल आउट, दिस विल बी 4/3 इंटू v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई v2 का स्क्वायर, म्यू एंड म्यू विल कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय x, 0 से 0 काट सकते हैं ना इसका, यस तो यहाँ से ये ऐसे कर सकते हैं 10 और यहाँ से ये कर सकते हैं 30। अब v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर यहाँ से उठा कर रख दो, v1 इज 3 तो 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 10 इंटू तो 360 डिवाइडेड बाई 3x, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं 120, यहाँ पर इसको 120 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 9/16 9/16 9/16 9/16 इज इक्वल टू 120/x, ये लिखा जा सकता है। यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 120 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 9, कैन यू फाइंड दिस वैल्यू प्लीज? तो 213.33 मतलब सर कंटिन्यू होता रहेगा। 213. राउंड ऑफ कर लो सर 213.34। सर हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया उसमें हमने इम्पल्स फोर्स को काउंट नहीं करते, नहीं उसका वर्क डन। नहीं, उसका वर्क डन काउंट नहीं करते, अच्छा, बिकॉज वो मोमेंटरली लगता है ना किसी भी बॉडी तो पे, डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है उस समय जब वो उठ रहा है। मोमेंटरली। ओके हो गया, सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो on the basis of this work energy theorem you can try to solve different problems based on this. Let's move to the next topic now. ये तो हो गया सर आपका वर्क एनर्जी थ्योरम की बात हो गई, आपकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात हो गई, आपको ये पता है कि कब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं कब नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो बेटर इज कि आप हमेशा मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ना लगा के वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि वेदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड इन दिस केस और नॉट, तो डायरेक्टली आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का तरीका ये होता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज हाउ यू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब लास्ट पार्ट इसका, उसके बाद पूरा जो इसका कोलिजन वोलिजन वो पूरा पार्ट है जो मोमेंटम का कंजर्वेशन, ये सब पूरा पार्ट मैं आपको सेंटर ऑफ मास में कराऊंगा, ठीक है, तो कहीं भी कराऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी किताबों में सेंटर ऑफ मास में होता है, एनसीईआरटी वगैरह के अकॉर्डिंग ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो लॉज ऑफ मोशन में भी कुछ पार्ट दिया रहता है और कुछ पार्ट जो कोलिजन का है वो इस चैप्टर में दिया रहता है, बट हम इनको एक साथ करेंगे डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर विच विल बी द चैप्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसमें एक लास्ट टॉपिक पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। द लास्ट टॉपिक इज पावर। सेंटर ऑफ मास टॉर्क वाला चैप्टर है ना? हाँ, उसी में टॉर्क भी आएगा आगे, सेंटर ऑफ मास, और उसी में फिर आगे आएगा रोटेशनल डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन जो भी कह लो, उसमें टॉर्क स्टार्ट होगा। ओके सर। खैर, तो देखिए पावर, पावर क्या चीज है सर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। इसको मैकेनिकल पावर भी कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग गिवन टू अ सिस्टम और सिस्टम इज गिविंग एनर्जी, उसका रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को भी हम पावर कह सकते हैं। मतलब एक तो तरीका ये है कि आप पावर को क्या कहें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम कह लीजिए, या आपको ये भी मालूम है कि जितना हम किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हैं दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ energy, and that energy divided by time it can also be considered as your power। तो आप या तो वर्क डन अपॉन टाइम कह लें या एनर्जी अपॉन टाइम कह लें, हैज द सेम मीनिंग पावर, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है, ठीक है।
इसी में दूसरी बात आती है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पावर डिलीवर होगा, व्हाट विल बी दैट? तो इंस्टेंटेनियस पावर इज रिटन एज dw by dt। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस पावर, dw by dt। हमें एक बात ये भी मालूम है कि इंस्टेंटेनियस पावर को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं d by dt ऑफ व्हाट? तो वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस पावर को फर्दर आप कैसे लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो एफ देखो ये एफ कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल, डजंट मैटर, बट बिकॉज हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं, मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हम पावर की बात कर रहे हैं, तो दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट विल बी सो स्मॉल दैट फॉर दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम वी कैन नेग्लेक्ट द वेरिएशन इन द फोर्स। इवन इफ दिस फोर्स इज वेरिएबल, तो हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं इफ द टाइम इज वेरी स्मॉल। नहीं आई बात समझ में? भाई अगर कोई चीज बदल रही हो, तो अगर बदल रही है तो उस क्वांटिटी के चेंज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इफ वी टेक द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने टाइम की वैल्यू लिया 0.0000000001 सेकंड, तो फॉर दैट स्मॉल इंटरवल वी कैन ट्रीट दैट क्वांटिटी टू बी कांस्टेंट, हेंस आई एम ट्रीटिंग एफ एज कांस्टेंट for the very short interval of time, right? And this can be written as equal to dx by dt. What is dx by dt? Because x is displacement. So what is dx by dt in this case? acceleration, velocity. Velocity. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसको हम f इंटू वी लिख सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो बिकॉज पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये जो वेलोसिटी आई है हमेशा याद रखना कि दिस इज द सॉरी, ये जो पावर आया है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, याद रखो फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है ये। व्हाई आर यू सेइंग कि डॉट प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि आपको मालूम है पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो दो वेक्टर का जो रिजल्ट है वो स्केलर कब होगा? तो दो वेक्टर का रिजल्ट स्केलर तब होगा जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो। इफ इट्स बीइंग अ क्रॉस प्रोडक्ट इट विल बिकम अ वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब कई बार आप ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, सर पावर कैन बी रिटन एज इक्वल टू एफ वी cos theta, where theta will be the angle between the force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी। ये जो थीटा है वो क्या चीज है? मान लो ये वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स ऐसे है, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी, राइट? आपको याद होगा एसआई यूनिट, हु विल टेल मी एसआई यूनिट ऑफ पावर? एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, किसी को याद है क्या? Watts. What? watt, वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, एक वॉट की वैल्यू क्या होती है? एक वॉट इज इक्वल टू 1 वन joule per जूल second. अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब if you are doing work at a rate of 1 joule per second, so that rate of doing work will be considered as 1 watt। तो एक वॉट का मतलब ये हो गया कि भाई अगर 1 जूल का काम आप 1 सेकंड में करते हैं, ठीक है, और हर सेकंड में 1 जूल का काम आप करते हैं, तो वो आपको 1 वॉट, उसी को हम कहेंगे 1 वॉट। आई होप बात समझ में आ गई है। yes sir, इसको नोट करिए। सर तो एफ डॉट वी हम तभी कर सकते हैं ना जब इंस्टेंटेनियस हो। Yes, very good. F dot V can only be applied if it is in case of instantaneous power. If it is not instantaneous, if it is the case of average power, तो F dot V नहीं होगा। क्या होगा फिर? we'll understand that, don't worry. But yes, सवाल आपका बिल्कुल सटीक है कि सर F dot V तो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब it is the case of instantaneous power. Yes, of course, whenever it is the case of instantaneous power, we can apply F dot V.
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि मैं आपसे कहूँ कि एक बॉडी है एंड इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, the initial velocity of this is zero, and we applied some external force onto this body, and the velocity of this body after some time it becomes v. velocity कितनी हो गई v? तो आपसे पूछा गया कि what is the power delivered by this force which is applied on the body? What is the power delivered by this force? तो आप में से कोई बता सकता है कि what will be the value of the power delivered by this force? Anyone? किसी का कोई आंसर? सिंपल सा सवाल आप लोगों को समझ आया क्या कि भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ by applying some force of F, है ना, whose magnitude is F, the velocity of this body becomes V. ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि what is the power delivered by this force? इस फोर्स ने पावर कितना डिलीवर किया? हम इंस्टेंटेनियस निकाल के इंटीग्रेट करेंगे क्या? यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे किसको? बिकॉज टाइम वाइम तो गिवन है ही नहीं, तो इंटीग्रेट क्या करोगे? यस सर। है ना? माइनस अच्छा, पहली बात, मुझे बस इतनी सी बात बताओ, आई जस्ट वांट टू चेक दिस वेदर यू हैव अंडरस्टूड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस और नॉट, कि अगर मैं यहाँ पर पावर को F into V लिखूं तो विल इट बी करेक्ट और विल इट बी रॉन्ग? यू जस्ट टेल मी दिस। गलत क्या ये होगा सही होगा? गलत होगा? व्हाई विल इट बी रॉन्ग? सर। ये इंस्टेंटेनियस के लिए वो सिर्फ एवरेज कह रहा है। यस, ये इंस्टेंटेनियस के लिए है, और यहाँ पर जो बात आ रही है, इट इज नॉट द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस, बिकॉज इस पॉइंट पे आपसे थोड़ी पावर पूछा जा रहा है, आपसे तो पावर पूछा जा रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और द बॉडी हैज चेंज्ड फ्रॉम 0 to v, तो इन दिस ड्यूरेशन व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स? और वो टाइम वाइम आपको गिवन नहीं है। पॉइंट बस इतना है कि टाइम वाइम आपको गिवन नहीं है, तो यू कैन नॉट गो फॉर द इंटीग्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट। तो सर क्या करोगे सर? तो इस केस में बस कुछ नहीं करो, ऐसे केसेस व्हेन यू हैव टू वेलोसिटीज, ठीक है, तो उसका मीन निकाल लो, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकाल लो, तो इसको आप u प्लस v डिवाइड बाई 2, हैव यू हर्ड दिस के अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो u प्लस v बाई 2 कैन बी रिटन एज द मीन ऑफ द टू वेलोसिटीज? ये कभी पढ़ा है? 9th में पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर, पढ़ा है सर ये कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? भाई पढ़ा है अगर कोई सर। पार्टिकल चल रहा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो उसका, एंड इट गोज फॉर टाइम t, तो एक फॉर्मूला होता है ना कि अगर कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से t टाइम तक जाए और v वेलोसिटी से t टाइम, ये मैंने ड्राइव कराया होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इनफैक्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस विल बी रिटन एज ut प्लस ऑफ vt डिवाइडेड बाय टोटल टाइम व्हिच विल बी 2t। t कॉमन ले लो, t u प्लस v डिवाइडेड बाय 2t, तो 2t, t से t कैंसिल, u प्लस v बाय 2 इज द एवरेज वेलोसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. The initial value of velocity is 0 in this case and final value of velocity is v, तो इसका मतलब है कि इसको हम सिंपली v by 2 लिख सकते हैं, तो एवरेज पावर दैट इज डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स विल बी सिंपली इक्वल टू fv by 2। दिस इज द वैल्यू। समझ आई बात? ये रिजल्ट आएगा। सर तो हम एवरेज वेलोसिटी डाल देंगे तो एवरेज पावर आ जाएगी। हाँ, इसे बिल्कुल आ जाएगी इस केस में, बिकॉज आपको ये देखो, एक बात समझो, क्या नाम है तुम्हारा, ऋषिक, यहाँ पर फोर्स इज नॉट वेरिएबल। यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है क्या? नहीं सर। नहीं है।
एवरेज पावर के केस में अगर ये फोर्स वेरिएबल होता तो इंस्टेंटेनियस पावर आप निकालते, फिर उसको इंटीग्रेट करते फॉर अ गिवन टाइम। मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ कि अगर कभी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, तो अगर एक्स एवरेज निकालना है तो बचपन से एक काम जानते हो, आपने किया होगा x1 प्लस ऑफ x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। दिस इज हाउ यू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अ गिवन क्वांटिटी फॉर n टर्म्स। लेकिन अगर मान लो कि इफ x वेरीज विथ टाइम, इफ x डिपेंड्स ऑन टाइम, मैं एक जनरल मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर x की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही हो, तो इस केस में अगर हम इसका एवरेज लिखें तो we'll write this average as x dt upon dt. This will be the average value, ठीक है, for a given interval of time। जैसे अगर मैं इस केस में p इंस्टेंटेनियस पावर लिख के उसको इंटीग्रेट कर देते, p dt डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय dt, तो ये एवरेज वैल्यू आता। बट उसके लिए मुझे पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए। यहाँ पर पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। ये इट इज नॉट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन ही नहीं है आपको, तो ये उसका क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, फोर्स जो आपको गिवन है वो कांस्टेंट है, तो इसका वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना इस केस में। यस सर। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज पावर बताना है तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए और एवरेज वेलोसिटी निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज एफ तो कांस्टेंट है ना, तो व्हाट इज चेंजिंग इज टाइम। अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं यकीन आ रहा है तो एक बात समझो कि भाई v वेलोसिटी है वही तो चेंज हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसी को तो इंटीग्रेट करेंगे, तो एफ बाहर आ जाएगा, v को ही तो इंटीग्रेट करेंगे, v dt कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे भाई, फॉर अ गिवन टाइम ऑफ 0 to t, जो भी टाइम दिया होता है। बट यहाँ पर टाइम की भी लिमिट नहीं, यहाँ पर आपको टाइम भी नहीं गिवन है, ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना इस केस में, बस एवरेज वैल्यू वेलोसिटी निकाल लो कि कितना आया, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, जस्ट फाइंड द वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और जस्ट मल्टीप्लाई द टू। ठीक है सर। यस सर। तो सर मतलब अगर फोर्स वेरिएबल नहीं है तो हम उसको एवरेज रख के निकाल लेंगे। सिंपली ऐसे कर लेंगे। ओके सर, क्लियर है। हाँ, अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन होता कि भाई आपसे बोला जाए कि 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में पावर निकालो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूँ, मतलब तुम्हारे लिए एक स्पेशली क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स is a function of time, function of time given as power equal to 2t square, मान लो, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, और आपसे बोला जाए फाइंड एवरेज पावर डिलीवर्ड, आपको क्या निकालना है, फाइंड एवरेज पावर डिलीवर्ड इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज पावर डिलीवर्ड की वैल्यू निकालनी। ठीक है सर, ये आपको कैलकुलेट कर, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो ये पावर है दैट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज पावर लिखें तो व्हाट विल यू डू, यू विल राइट दिस एज p dt upon dt, and what would be the limits for the time, so that will be from 0 to 4, and in the numerator also it will be from 0 to 4। अब इसका एवरेज निकालने के लिए आप यहाँ पर ये रख दीजिए 2t स्क्वायर dt कर दीजिए, नीचे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dt है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, t क्यूब बाई 3। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4 डिवाइडेड बाई dt, कहाँ से कहाँ तक dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4। समझ आई बात? यस सर। कर लोगे इसका इंटीग्रेशन। अब इसके बाद क्या होता है, यू जस्ट हैव टू पुट द लिमिट्स, राइट? विल यू बी एबल टू सॉल्व नाउ?
भाई लिमिट पुट कर लेंगे आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कैन वी प्रोसीड नाउ? लेट अस सॉल्व वन और टू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. Yes, sir. ओके, लेट अस प्रोसीड. एक नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए, ये आप अरेंजमेंट समझिए कि मान लीजिए ऐसा कुछ मान लेना है. इमेजिनरी सवाल है बट इट्स प्रैक्टिकल सवाल. ठीक है, इमेजिनरी है क्योंकि इमेजिनरी इन द सेंस ऑफ डेटा, बट इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिकॉज ये आपके जिंदगी में इन्वॉल्व है. ये बेसिकली आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर हमने कोई मोटर लगाया है. ये मोटर है, ठीक है, और ये हमारा पाइपलाइन है. ये ऐसा आपको मान लेना है भाई, ये ऐसा पाइपलाइन हमारा, ये ऐसा, एंड देयर इज अ टैप. और ये जो मोटर है, दिस इज एट अ हाइट ऑफ लेट्स से 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. यहाँ से पानी का लेवल शुरू होगा. दिस मोटर हैज टू लिफ्ट द वाटर अप. और ये जो टैप है, दिस इज फ्रॉम हियर, दिस इज अगेन, दिस हाइट इज 10 मीटर. ठीक है, तो दिस हैज टू लिफ्ट द वाटर अप एंड देन इट हैज टू मेक द वाटर फ्लो थ्रू द टैप. Let us say कि area of cross section of this tap is equal to 0.1 मीटर स्क्वायर मान लो. और इस टैप से जो पानी हमें चाहिए, that must come out from the tap with a velocity of, let's say, velocity with which the water should come out from the tap is equal to 0.2 meter per second. This is the velocity with which the water should come out from the tap. The next point is कि डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोगों को वैसे याद होनी चाहिए. डेंसिटी ऑफ द वाटर इन एसआई यूनिट इज 10 to the power 3 kg per meter cube. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? मतलब एक मोटर हमें लगाना है which will be at a height of 10 meter from the ground level or the water level. तो मोटर वहां से पानी उठाएगा और फिर और ऊपर कितना ले जाएगा, तो 10 मीटर की और हाइट इसको प्रोवाइड करेगा वाटर को, एंड देन वाटर विल कम आउट फ्रॉम द टैप विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड. मुझे ये पानी चाहिए बाहर विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.1 मीटर स्क्वायर फॉर द टैप, और डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको गिवन है. तो आपको पूछा यह जा रहा है कि व्हाट should be the power of the motor which must be connected to this so that I get water out of the tap with a velocity of 0.2 meter per second. आपको क्या बताना है? पावर ऑफ मोटर. पावर ऑफ मोटर चाहिए मुझे. ठीक है, पावर ऑफ मोटर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर आपको कोई टाइम गिवन नहीं है कि भाई कितनी देर में आपको पावर निकालना है, वो टाइम गिवन नहीं है. यहाँ पर आपको टाइम गिवन नहीं है ना कि कितनी देर में आपको पावर निकालना है, ये टाइम तो आपको नहीं गिवन है. तो यहाँ पर जब भी ऐसे सिचुएशंस हो वेयर यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ टाइम, तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू? यू विल कैलकुलेट द पावर पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट आवर, ऐसा कैलकुलेट करोगे. समझ रहे हो? Yes, sir. आप लोग पहली बात ये क्वेश्चन समझ गए मैंने क्या करा है इस क्वेश्चन में? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. पहली बात, मैंने आपसे एक बात बताया था कि पावर को आप आइदर यू कैन राइट इट एज वर्क डन अपॉन टाइम, और यू कैन इवन राइट इट एज एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करा आपने डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, दैट विल आल्सो गिव यू द वैल्यू ऑफ द पावर, राइट? ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को भी हम पावर कहते हैं. तो आप बेसिकली क्या करना है यहाँ पर कि पानी को यू हैव टू टेक टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर. अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये मोटर हैज टू लिफ्ट द वाटर अप बाय अ हाइट ऑफ 20 मीटर, राइट? भाई 10 मीटर यहाँ से, फिर ऊपर भी तो चढ़ाएगा, तो Yes, sir. कितना ऊपर ले जाएगा? 20 मीटर. तो इसका मतलब जब आप किसी भी चीज को when you raise it to some height, obviously you increase the gravitational potential energy of that body, right? तो यहाँ पर ये मोटर पानी को नीचे से ऊपर ले जाएगा to a height of 20 मीटर. तो undoubtedly what will it do? It will increase the gravitational potential energy of the water, right? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद पानी को बाहर आना है विद वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड. तो ये मोटर क्या करेगा? मोटर पानी को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, मोटर क्या करेगा? मोटर पानी को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा. तो मोटर इज डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम.
ये क्या कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, साथ साथ ये काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह से एनर्जी को चेंज कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ये इंक्रीज कर रहा है। तो कितने रेट से, मतलब कितनी एनर्जी इंक्रीज करा है इसने कितने टाइम में, उसी को तो हम मोटर का पावर कहेंगे। नहीं, यही बात समझ में, मोटर का पावर निकालना है अगर, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द मोटर, तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप ये एनर्जी फाइंड कर लीजिए, कितनी एनर्जी बढ़ाया मोटर ने, ठीक है, पर यूनिट टाइम, वही आपका पावर होगा। तो एनर्जी कितनी बढ़ी, तो एनर्जी लिखने के लिए हमें मास भी चाहिए होगा कि भाई कितना पानी। तो मुझे एक बात बताओ कि हमें जो पावर निकालना है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम में टाइम की वैल्यू 1 सेकंड लेनी है, समझ पा रहे हो, प्लीज एक बार हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। हमने क्या बोला Yes, आपको sir. कि यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है, तो आप क्या लेंगे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब पर यूनिट सेकंड। ठीक है, तो अब एक बात समझने वाली है यहाँ पर कि सर 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा, उसी का मास तो हमें चाहिए होगा, बिकॉज बिकॉज इफ यू वांट टू राइट, because if you want to write what, if you want to write the value of gravitational potential energy, then also you need the mass, and when you will try to find out the kinetic energy, then also in that case you need mass, right? So in both the situation you need to have the value of the mass, और mass कैसे calculate करोगे, तो और एक वॉल्यूम सेकंड में निकाल के पानी का कितना मास आया वो निकालना है। तो 1 सेकंड में पानी का मास, तो मास को देखो एक बचपन वाली मतलब ये फिजिक्स या साइंस का कॉन्सेप्ट है कि डेंसिटी इनटू डेंसिटी वॉल्यूम। मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, और डेंसिटी आपको मालूम है वाटर का 10⁻³ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम याद करिए कि वॉल्यूम को हम एरिया इनटू लेंथ भी लिखते हैं। अब देखिए आप एक बात सोचिए कि इससे जो पानी निकलेगा 1 सेकंड में कितनी लेंथ निकलेगी पानी की, तो 1 सेकंड में 0.2 मीटर निकलेगी, हाँ ना बोलो। इन Yes. 1 सेकंड द लेंथ ऑफ द वाटर दैट विल कम आउट विल बी 0.2 मीटर, एम आई करेक्ट? तो 1 सेकंड में 0.2 मीटर, और उस 0.2 मीटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 0.1 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज 0.2। 1 सेकंड में चाहिए था, 1 सेकंड में दिस विल बी द मास। इज इट क्लियर? Yes, सर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी विल बी mgh प्लस ऑफ हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मास। मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, दिस इज द मास, एंड यू कैन टेक द मास एज कॉमन। 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितना ऊपर चढ़ाना है पानी को, 20 प्लस ऑफ हाफ इंटू वी स्क्वायर, कितने से पानी बाहर आना चाहिए, 0.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.2, 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो एनर्जी आए उस एनर्जी वही पावर भी होगा, बिकॉज एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 सेकंड ही तो कर रहे हैं ना आप। यस तो सर। यही आपका पावर भी हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द मोटर इक्विपमेंट। सर तो हमें डायरेक्टली पर सेकंड मिल जाएगी पावर। हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली पर सेकंड, बिकॉज एनर्जी पर सेकंड आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये आपको पावर डायरेक्टली पर सेकंड निकल जाएगी। सर जो हॉरिजॉन्टली पाइप रन हो रहा होगा टैप में, उसका कुछ नहीं होगा हमें रिक्वायर्ड? नहीं, वो हॉरिजॉन्टल पार्ट पहली बात तो ये इसका मतलब ऐसा समझ लो कि लेंथ इज नेग्लिजिबल फॉर दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन। दूसरी बात ये है कि हॉरिजॉन्टली अगर आप किसी भी चीज को मूव कराते हो ऑन द सेम लेवल, इफ यू मेक द बॉडी मूव, तो देयर विल बी नो डिफरेंस ऑफ हाइट, राइट, एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए Yes. हॉरिजॉन्टल पोर्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज आती है, अगर हम वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे पढ़ेंगे, विस्कस फोर्सेस एंड विस्कोसिटी, so that may make some difference, but in this part of the question we are not considering those forces। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है दिस इज नेग्लिजिबल एंड इट विल हैव नो इफेक्ट एज सच ऑन द एनर्जी ऑफ द वाटर।
Is it done? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। This question was asked in AI EEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था जब आपका IIT was isolated body and AIEEE was a different body. अब तो सब कंबाइन हो गया है। This question was asked in AIEEE in the year of 2003. आपने NIT का नाम सुना? NIT जो कॉलेजेस होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. है ना? NITs में एडमिशन होते थे AIEEE के थ्रू, और IIT का जो एग्जाम होता था उसमें सिर्फ IIT में एडमिशन होते थे, उसका सिर्फ लेना देना IIT के साथ था। और NITs वगैरह या अदर कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन होता था NITs के थ्रू, समझ रहे हो? तो उसमें AIEEE के थ्रू होता था, AIEEE के थ्रू। अब तो सब कॉमन हो गया। अब जिसको IIT नहीं जाना है या उसको नहीं लगता कि वो IIT कर सकता है तो वो IIT एडवांस नहीं देता है, बट JEE मेंस तो सबको देना पड़ता है। चाहे आपको NIT चाहिए या आपको कोई मतलब लोअर लेवल पे ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या कोई और कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए यू विल हैव टू पास आउट द एग्जाम ऑफ JEE मेंस। हाँ, अगर सिर्फ IIT खाब है तो फिर आपको JEE एडवांस देना पड़ेगा। एनीवेज, तो आज की डेट में जो JEE मेंस है वही AIEEE था पहले। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, द क्वेश्चन वाज दिस वे कि अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन delivering a constant power p. Find the expression for the distance moved by the body in the term of m, p and t. क्या मतलब है सर सवाल का? सवाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कोई बॉडी है जिसका मास m है। The mass of this body is m and this body is made to move on a straight line by machine delivering a constant power. मतलब इस पे एक फोर्स लगाया हमने which is providing a constant power. P stands for power in this case and power is constant. तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टर्म्स ऑफ m, p and t। मतलब आपको क्या बताना है? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टर्म्स ऑफ m, p and t। ठीक है, m stands for the mass, p stands for the power and t stands for the time। समझ गए? Yes, sir. चलिए, तो देखिए सर कैसे निकालें इसमें। तो पहली बात तो यहाँ पर पावर कांस्टेंट है, तो यू डोंट नीड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर। इस बात से तो बेफिक्र हो कि आपको एवरेज वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पर। तो आपको पावर में करना क्या है? तो आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पर आपको फाइनली व्हाट यू वांट इज डिस्टेंस। तो आप पावर से पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो, और वेलोसिटी जब आ जाएगी तो फ्रॉम दैट यू कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस। सर कैसे सर? तो देखिए सर, पावर को हम जानते हैं कि पावर कैन बी रिटन एज F into V। हमें बोल रखा है कि पावर इज अ कांस्टेंट हियर, और F को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू V। एम आई करेक्ट? तो पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज इक्वल टू dV by dt, because we have to find the value of velocity first, because once I'll get the value of the velocity, finding the distance is not a big deal। तो यहाँ से V, तो इसको हम लिख सकते हैं सर V dV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये P by M मल्टीप्लाइड बाई dt। एम आई करेक्ट? दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करो, इधर भी और इधर भी, तो यू विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p बाई m मल्टीप्लाइड बाई t, और यू कैन राइट दिस एज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2p बाई m मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक है, और यहाँ से आप v को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि v कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी। ठीक है,
तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2p/m बिकॉज दिस होल टर्म विल बी कांस्टेंट इनटू t। t को भी अंडर रूट में लिखा जा सकता था, बट मैं जानबूझ के 1/2 लिख रहा हूँ क्योंकि फर्दर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए v को हम और क्या लिख सकते हैं सर? हु विल टेल मी व्हाट वी कैन राइट v इन टर्म्स ऑफ x? तो बताएगा सर v in terms of x, v इन टर्म्स ऑफ x। v को क्या लिख सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? कैसे लिखा जाता है इन डिफरेंशियल फॉर्म? dx by dt। dx by dt ऑफ कोर्स एक ही बच्चे को याद है क्या? बाकी लोग सन्नाटे में। dx by dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? हमें x ही चाहिए ना, पढ़ो क्वेश्चन में। यस तो सर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p/m, और ये क्या हो जाएगा? t टू द पावर 1/2 dt। t टू द पावर 1/2 dt। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, कर सकते हो इंटीग्रेट। यस सर। तो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज x अंडर रूट 2p, बिकॉज दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, तो आई हैव केप्ट इट एज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, कहीं पर स्मॉल एम या कहीं पर कैपिटल एम हो जाए तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो समझ लेना कि वो राइटिंग एरर है। और यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t 3 टू द t पे इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो n t का अगर पावर n है तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होगा, ठीक है। तो t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा सर इसमें। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाई m टू द t टू द पावर 3/2। या आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि x इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2 बिकॉज दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। समझ आया? यस सर। सर तो हम जनरली सारे क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल फोर्स नहीं है वो एफवी से ही करेंगे। हाँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो fv से ही कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। देखो यहाँ पर वैसे भी आपसे क्या पूछ रहा था वो, आपसे वैसे भी यहाँ पर जो पूछ रहा था वो सिंपल सा पॉइंट ये था कि they were asking you this value of distance traveled in terms of mass and all those things, ठीक है। तो मास और अदर पैरामीटर्स के टर्म्स में आपसे क्या पूछ रहा था? वो डिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा था, तो इसलिए आपने ये करा है। इसको नोट कर लीजिए सर। हो गया सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो ये चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर is over now. We'll go to the next chapter now, which is center of mass. अब वो चैप्टर एनसीईआरटी में जिस भी नाम से हो, मैं इसको लिख पा रहा हूँ आपको सेंटर ऑफ मास। चैप्टर का नाम नेक्स्ट लिखे सेंटर ऑफ मास। इसमें एक तो चीज जिस पे हम डिस्कशन करेंगे दैट वुड बी द सेंटर ऑफ मास, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड ऑल दोस थिंग्स। दूसरा, इसी चैप्टर में हम मोमेंटम का कंजर्वेशन भी सीखेंगे और साथ साथ इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है सर? सेंटर ऑफ मास, किसी को कोई आइडिया है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? कभी सुना हो नाम? सर इमेजिनरी पॉइंट जहाँ पे हम मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है सारा मास। वेरी गुड, ये भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सही। सुनिए, सेंटर ऑफ मास को अगर डिफाइन किया जाए तो बेसिकली हम सेंटर ऑफ मास के बारे में ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम में, अब सिस्टम का क्या मतलब होता है पहले तो इस बात को समझो।
भाई इससे पहले भी आपने सुना है कि सिस्टम का क्या मतलब था। सिस्टम मैंने आपसे बोला था कि भाई वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिस पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमें सिर्फ उससे मतलब है, एंड दैट विल बी द सिस्टम फॉर अस। अब यहाँ पर भी सिस्टम की बात हो रही है, तो सिस्टम का मतलब कि एक से ज्यादा पार्टिकल या एक से ज्यादा बॉडीज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है ना, वो दो टाइप का होता है, एक तो डिस्क्रीट सिस्टम और एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का पहले मतलब समझ लो। आपका जो सिस्टम है ना, मतलब पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिस पर यू आर मेकिंग सम ऑब्जर्वेशन, वो सिस्टम आपका बेसिकली दो में से कोई भी टाइप का हो सकता है। या तो वो डिस्क्रीट हो सकता है, डिस्क्रीट सिस्टम, या वो हो सकता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। उसके बाद फिर मैं सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करूंगा, बट पहले आप ये समझ लें कि डिस्क्रीट हो सकता है वो सिस्टम या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो सकता है। डिस्क्रीट का क्या मतलब? तो डिस्क्रीट का मतलब होता है बेटा कि जहां पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इस बात को बस ऐसे समझो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन फॉर दिस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिकल है यहाँ पर, एक पार्टिकल कहने का मतलब इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ बॉल, इट कैन बी एनीथिंग, बट हम उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअली इट हैज इट्स एग्जिस्टेंस, आई मीन इंडिविजुअल इसका पोजीशन है, इंडिविजुअल इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसको हम डिस्क्रीट सिस्टम की तरह कंसीडर करेंगे। मतलब जैसे चार लोग चार जगह पे खड़े हैं, तो ईच ऑफ द पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द डिस्क्रीट सिस्टम, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन का एक एग्जिस्टेंस है, वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, वो हम इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिस्टम। तो मान लीजिए ये M1 है, जैसे यहाँ पर कोई M2 है, M2 इज द अनदर पार्टिकल, ठीक है, M3 is another particle and so on. If we have different particle which can be observed individually or we can distinctly observed, in that case that system will be called as discrete system. ठीक है, जैसे दो पार्टिकल हमने लिया, दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, तो उसको हम डिस्क्रीट सिस्टम कहें। बट कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यू कैन नॉट डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का दूसरा मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस बॉडी। जैसे मान लो कि मैंने एक रॉड ले ली, ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, और ये रॉड हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ रॉड। तो अगर हमने रॉड कंसीडर कर लिया, तो रॉड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज एन आयरन रॉड, तो इट विल हैव नंबर ऑफ आयरन पार्टिकल्स इन इट, बट हम उन सारे आयरन पार्टिकल्स को इंडिविजुअली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द पार्टिकल्स इंडिविजुअली और डिस्टिंक्टली इन दिस केस। तो इस केस में हम इसको क्योंकि सर आप ये नहीं बता सकते ना कि भाई कोई अगर यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो इतने करीब करीब हैं कि इसको आप अलग अलग इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन कर ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देयर आर इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयर आर इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इन डिस्टिंक्ट नेचर। तो उस केस में आप क्या कहेंगे? उस केस में इस तरह के सिस्टम को आप कॉन्टिन्यूअस सिस्टम मानेंगे। अगर इतनी बात में नहीं समझ में आए तो सिंपली समझ लो, रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उस पार्टिकल्स को हम अलग अलग, अच्छा अगर 10 रॉड्स आर देयर एंड ईच रॉड कैन बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, तो हम हर रॉड को डिस्क्रीट मान सकते हैं। बट वो रॉड जिन पार्टिकल से बना है, उन पार्टिकल को हम डिस्क्रीट वे में ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज हर पार्टिकल को हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? आ गई सर। आ गई। इसी तरह से मान लीजिए कोई रिंग है, कोई डिस्क है, तो these all these bodies will be considered as the continuous bodies or continuous system। ठीक है, तो दो तरह के जनरली हमारे सिस्टम होंगे, एक डिस्क्रीट सिस्टम होगा और दूसरा कौन सा सिस्टम होगा? द सेकंड सिस्टम वुड बी द कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो डिस्क्रीट सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम दो तरह के सिस्टम है। अब इन दोनों सिस्टम में हाउ डू वी डिफाइन द सेंटर ऑफ मास? तो रिमेंबर, सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का वो पोजीशन है या वो पॉइंट है, किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट, अ पॉइंट in a system at which you can consider the whole of the mass of the system to be placed। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट है जहां पर उस पूरे सिस्टम का हम अज्यूम कर सकते हैं कि मास प्लेस्ड है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? मतलब अगर हम उस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दें बाय दैट सिंगल पार्टिकल, तो पूरे सिस्टम का इफेक्ट वो सिंगल पार्टिकल हमें रिप्रेजेंट कर देगा, और उसी सिंगल पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास कहेंगे। पहले ये बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? मतलब पूरे सिस्टम को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे?
just by that single particle, and that single particle will give the effect of the whole of the system. ठीक है, उसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं. क्लियर हो गई बात? यस सर. पक्का? तो इसके एक डेफिनेशन लिख लीजिए. दो इसकी डेफिनेशन, एक तो अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखी जाए तो उसमें आप ऐसे लिख लीजिए, the center of mass of the system of a particle is that single point. The center of mass of system of particle is that single point. The center of mass of the system of particle is that single point. The center of mass of the system of particle is that single point. Is that single point which moves in the same way. 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 In which moves in the same way. In which a single particle, which moves in the same way, in which a single particle, which moves in the same way, in which a single particle, लिख लिया, having the total mass of the system, in which a single particle having the total mass of the system, having the total mass of the system and acted upon by the same external force, and acted upon by the same external force, and acted upon by the same external force, and acted upon by the same external force would move. Excuse me. And acted upon by the same external force would move. And acted upon by the same external force would move. And acted upon by the same external force would move. लिख लिया? यस सर. अच्छा, और करके दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लो. बताऊं दूसरा स्टेटमेंट? The center of mass of a body is a point where the whole mass, the center of mass of the body is a point where the whole mass, the center of mass of a body is a point where the whole mass, the center of mass of the body is a point where the whole mass of the body, where the whole mass of the body, where the whole mass of the body can be assumed to be concentrated, can be assumed to be concentrated, can be assumed to be concentrated. लिख लिया सर? Yes, sir. अब मैं दोनों पॉइंट्स आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि पहली बात तो एक तो आसान वाली डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर आप पूरे सिस्टम का मास अज्यूम कर सकते हैं टू बी प्लेस्ड, एक्सक्यूज मी, टू बी प्लेस्ड और कंसंट्रेटेड. आप पूरे सिस्टम का मास अगर उस पॉइंट पे अज्यूम कर लें तो वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा. दूसरा इसका एक और डेफिनेशन मैंने आपको दिया है कि सेंटर ऑफ मास को हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट है किसी भी सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है किसी सिस्टम का जहां पर आप क्या कह सकते हो, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है किसी भी सिस्टम का जहां पर आप ये कह सकते हो कि भाई आपका अगर जो पॉइंट हमने माना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी हम मान लेते हैं, ठीक है, और इस पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये मूव करेगा. तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट है सिस्टम का कि अगर हम इसको अलग कर दें,
और उस पर उतना ही फोर्स लगाएं जितना इस पूरे बॉडी पे फोर्स लगाया है। मतलब सेंटर ऑफ मास वो इमेजिनरी पॉइंट है जिस पर अगर हम उतना ही फोर्स लगाएं जितना पूरी इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, तो ये पॉइंट वैसे ही मूव करेगा द वे द होल बॉडी वुड मूव। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मतलब सेंटर ऑफ मास पे अगर उतना ही फोर्स लगाया जाए जितना हमने पूरे बॉडी पे फोर्स लगाया है, तो दिस सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द सेम वे एज द होल बॉडी मूव्स। तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो चाहे चाहे जो भी डेफिनेशन हो, चाहे आप इस तरह से डेफिनेशन समझ लें या वैसे समझ लें, सिंपल पॉइंट ये है कि भाई सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है किसी सिस्टम का जिसपे हम पूरा इफेक्ट ऑफ द सिस्टम उससे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम पूरे सिस्टम का जो इफेक्ट है उस सिंगल पॉइंट से हम समझ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट पॉइंट ऑफ अ सिस्टम विल बी सिंपली कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ गए बच्चों? बच्चों यस सर। अब देखो, अब पॉइंट ये है कि भाई सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करा जाएगा, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करा जाएगा। तो पहले डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सीखेंगे। तो डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सीखने के लिए पहले देखिए एक्स वाई और जेड। मान लेते हैं सर यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। भाई स्पेस में कहीं पर ये पार्टिकल रखा हुआ है एंड इट हैज कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1 एंड z1। सिमिलरली देयर इज सम अदर पार्टिकल ऑफ मास लेट अस से m2, इसका कोऑर्डिनेट है कुछ x2 y2 z2। इसी तरह से और मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं कोई पार्टिकल है, लेट्स दिस बी m3 पार्टिकल, the mass of which is m3 and its coordinate is x3 y3 and z3। ठीक है, x3 y3 and z3, these are the coordinate of these particles। और इसको आपने स्पेस में कहीं पर रख दिया है। तो अगर आपने स्पेस में कहीं पर पार्टिकल्स को रख दिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो देखो एक बात समझो कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना चाहता हूँ बाय सिंगल पार्टिकल, तो वो सिंगल पार्टिकल भी तो कहीं ना कहीं होगा ना इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। क्या बोलते हो ऋषभ? यस सर। कहीं ना कहीं पर तो होगा वो। तो जहां पर भी होगा तो उसके भी एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई कोऑर्डिनेट होगा और उसका भी जेड कोऑर्डिनेट होगा। इट विल आल्सो हैव सम एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एज वेल एज जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हम फाइंड कैसे करते हैं या डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो यू जस्ट हैव द फॉर्मूला फॉर दैट, देयर इज नो डेरिवेशन फॉर दैट एट योर लेवल। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अगर हमें एक सेंटर ऑफ मास लिखना है तो एक सेंटर ऑफ मास लिखने का तरीका होता है m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2, मतलब मास एंड इट्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, plus m3 x3 and so on, x3 and 3 so on, divided by what? Divided by total mass m1 plus of m2 plus of m3 and so on। ठीक है, this will give you the x coordinate of the center of mass। ठीक है, इसी तरह से if you have to write the y coordinate of center of mass, तो same formula, just x coordinate will be replaced by y coordinate, तो m1 y1 m2 y2 and so on and so forth, divided by total mass of the system m1 plus of m2 plus so on and so on। इसी तरह से सर z coordinate, तो फिर से वही z coordinate of center of mass will be written as equal to m1। now this y will again be replaced by z, so m1 z1 plus of m2 z2 and so on and so forth, divided by m1 plus of m2 and so on and so forth। so this is the formula to get the x, y and z coordinate for the center of mass। clear है? इसमें एक बात याद रखिएगा कि if the coordinate is positive तो you will put a positive sign with that, and if the coordinate is negative तो you will put a negative sign before that coordinate। मतलब आपका कोई पार्टिकल जो जहां पर भी आपने ओरिजिन माना है उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव तो यू विल कीप इट एज पॉजिटिव। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन इज नेगेटिव तो यू विल पुट अ नेगेटिव साइन विद दैट। ठीक है, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ओरिजिन और चॉइस ऑफ योर ओरिजिन। फॉर्मूला नोट करिए सर, आगे बढ़ते हैं।
Is it noted? Is it done? Yes, sir. मुझे लग रहा है कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, तो कर लो बेटा. Radhya and Rishik, is it done, beta? Yes, sir.